जब तक यहाँ बंदा ज़िंदा है ना, तो नो मैटर उसे क्या हुआ है, उसको अटेंडेंस नहीं ही मिलेगी। तो जब भी छुट्टी का शेड्यूल आएगा ना और आप लोग देखोगे कि होली की 2 दिन की छुट्टी मिली है, दिवाली की 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब मेडिकल कॉलेज में कॉम्पिटिटिव नेचर होना इज़ लाइक अपनी ज़िंदगी की खुद ही वाट लगा दे रहा हूँ। हाय गाइज़, दिस इज़ संजना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. First of all, I'm really very thankful to all of you for such a nice and cute and warm support to the last videos that I've posted. And thank you to all of you. Thank you to all the new people that have subscribed to my channel. And of course, for all those people who have been watching me since the very beginning, I cannot be thankful enough to all of you guys. It's so windy. This video is like a very sensitive video, I'd say, and it is like based on what I have experienced so far in my medical college life. What were my expectations before joining the college, and what it is actually now when I have been in a medical college for almost 5 to 6 months now. They say crying in MBBS is better than crying for MBBS. And now, when I have reached into a medical college, I see a lot of people crying about getting into MBBS. And I am one of them. At times, though I'm very grateful, I cannot thank God enough for the Almighty letting me pursue my dreams. And I had always wanted to be a doctor, and I'm very grateful for what I am doing right now. But then there have been points when I have been so much in distress that I had wanted to quit from here, and I would have, and I would just think that why would I get into such a trouble? Like, why would I cause trouble in my own life? I would want to put some points in front of you to let you guys have a थोड़ा बहुत fair idea of getting into MBBS life. Although मेरे को भी 5 ही महीना हुआ है, I cannot say कि overall life ऐसी ही होगी, but what my experiences till now are, जो भी मेरे experiences हैं till now, I would want to share all of those. And I would want you people to have like a थोड़ा बहुत basic idea if that saying is true, like crying in MBBS is better than crying for MBBS. So what happens when you know that you've cleared NEET and now at this rank or at this marks, you would get into a medical college? You get very happy. I was very excited and I was waiting for that, like, जो खाली टाइम होता है नीट के रिजल्ट से लेकर के काउंसलिंग तक का, एंड द टाइम until you join the college, उस खाली टाइम पे ना आई वॉज वेरी लाइक इम्पेशेंट कि कैसे ही करके मैं जल्दी जल्दी कॉलेज जाऊँ, जल्दी जल्दी कॉलेज जाऊँ. ओके. सो वो जो टाइम होता है बहुत एंथुसियाज्म भरा होता है कि ओ माय गॉड मैं कैसे कॉलेज जाऊँ, कब कॉलेज जाऊँ, ऐसा होगा कॉलेज, वैसा होगा, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कॉलेज से. तो मेरा टाइम भी वही था. आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज वेटिंग फॉर द काउंसलिंग. आई वाज वेटिंग फॉर मी टू जॉइन माय मेडिकल कॉलेज. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन द मेडिकल कॉलेज? स्टार्टिंग के कुछ दिन यू आर लाइक ओ माय गॉड मेरा मेडिकल कॉलेज, ओ माय गॉड मेरा कैंपस ऐसा है, ओ माय गॉड यहाँ तो ये भी है, एवरीथिंग अमेजेस यू, ओ माय गॉड मैं तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन में हूँ, दिस दैट एवरीथिंग अमेजेस यू. बट देन reality starts hitting kuch din baad, like, maybe like after a week or so, when you start feeling tired out of that very hectic schedule which you have to follow from like 7 to 4 in the evening. You do not even get a single free second. It is when reality hits you. तो जितना एमबीबीएस लाइफ को ग्लोरीफाई कर दिया है ना, ऑल ऑफ दैट नीट इंडस्ट्री जो है पूरा, लाइक प्रिपरेशन कराना एंड एवरीथिंग, वो जो मोटिवेशन देना कि लाइफ यहाँ जाओगी ऐसी होगी, all set and this and that. This is not actually how life is actually. Like, not to demotivate somebody or whatsoever. It's about me wanting to put out certain things जो कि is the reality, which is actually the true reality of MBBS. So as अभी मैं घर पे आई हुई हूँ अपनी होली की छुट्टियों में, तो I would start from छुट्टियाँ itself. Okay. ऐसा होता है कि लाइक तुम्हें प्रॉपर किसी की चीज़ की छुट्टी नहीं मिल रही है, जैसे जैसे और कॉलेजेस में होता है कि सेमेस्टर खत्म हो गया, देन यू आर गेटिंग अ सेमेस्टर ब्रेक, फिर ये हो गया, फिर तुम्हें छुट्टी मिल रही है, या फिर कुछ कुछ छुट्टियां मिल रही हैं. यहाँ होली दिवाली लाइक 1 2 3 डेज मैक्सिमम, 1 2 3 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं, 2 दिन की छुट्टियां मिल रही है. उसमें जो बच्चे दूर रह रहे हैं उनको तो 2 दिन जाने में ही लग जा रहा है. 3 दिन की छुट्टियां बस मैक्सिमम, दिस दिस इज द अमाउंट ऑफ छुट्टियां दैट यू गेट इन एन एंटायर ईयर. और उन छुट्टियों के लिए तुम्हें अपनी अटेंडेंस के साथ खेल के मास बंक करना पड़ता है सारे बच्चों को, सो दैट दे कैन हैव अ पीसफुल टाइम एट होम फॉर लाइक अ बिट, फॉर लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन हैव सम पीसफुल टाइम. होली दिवाली को तुम अपने घर पे एंजॉय कर सको, उसके लिए तुम्हें अपनी अटेंडेंस को दाव पे लगा करके
घर जाना पड़ता है। हाँ, ऑल्दो आई नो कि ऑलमोस्ट हर जगह मास बंक की अटेंडेंस मिल जाती है, बट एटलीस्ट एटलीस्ट हमें सोचना पड़ता है कि अगर डिपार्टमेंट ने नहीं दी तो। जब भी छुट्टी का शेड्यूल आएगा ना, और आप लोग देखोगे कि होली की 2 दिन की छुट्टी मिली है, दिवाली की 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब बुरा लगता है कि यार इतना भी क्या है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक का हम रोज़ जा रहे हैं कॉलेज, लाइक रोज़। जस्ट अ संडे जब छुट्टी मिलती है, ठीक है? हम हफ्ते में 6 दिन रोज़ जा रहे हैं इतना देर कॉलेज। 8 घंटा हम कॉलेज में बिता रहे हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट गिविंग अस हॉलीडेज़, जब हमको जेन्युइनली हॉलीडेज़ चाहिए। लाइक 2 दिन में होली 2 दिन में घर जाके बंदा क्या ही करेगा? 2 दिन, 1 दिन आने में लग जा रहा है, 1 दिन जाने में लग जा रहा है। तो या फर्स्ट थिंग इज़ छुट्टियाँ। The second thing is attendance itself. Okay. No matter how regular you are, पता नहीं अटेंडेंस शॉर्ट हो ही जाती है, क्योंकि पता है छोटी छोटी छुट्टियों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। वो थोड़ा बहुत बंक में, या थोड़ा बहुत आज तबीयत खराब हो गई, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, अटेंडेंस पूरी ही नहीं होती। अटेंडेंस का तुम्हें हमेशा डर लगे रहेगा। नो मैटर तुम बहुत ही ज्यादा थके हुए हो, तुम बीमार हो, यूड ऑलवेज थिंक अबाउट कि आज, पहले तो ऐसा लगेगा कि आज नहीं जाते हैं, बट देन यू स्टार्ट फीलिंग बैड कि यार नहीं नहीं, मेरी अटेंडेंस कम हो रही है, मेरी अटेंडेंस कम हो रही है। तो मेंटेनिंग अटेंडेंस इज अ वेरी 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 बिग इशू। जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो यही सोचते होंगे कि यार स्कूल में तो हम कर लेते थे, तो यहाँ भी कर लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट नो, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स ओवर हियर, क्योंकि how do I explain it? Like maintaining attendance is like a very real thing. So it is very problematic यहाँ भी, and very harsh rules there are. मतलब at least जितना मैंने अपने कॉलेज का सुना है, there was this बच्चा जिसको एक हेल्थ इशू हो गई थी, and he happened to be like chronically absent for a while. एंड आई आस्क्ड हिम कि उसको मेडिकल लगा करके उसकी अटेंडेंस मिल जाएगी, तो ही वाज लाइक जब तक यहाँ बंदा जिंदा है ना, तो नो मैटर उसे क्या हुआ है, उसको अटेंडेंस नहीं ही मिलेगी। The next and the most important, और I would say the most खून चूसने वाली चीज है syllabus। 3 सब्जेक्ट हैं, लगता है कि हो जाएगा, 3 ही तो सब्जेक्ट है। ओह माय गॉड! नहीं होएगा, नहीं होएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि पहले तो द मोमेंट यू एंटर एमबीबीएस, और जब तुम धीरे-धीरे पढ़ना शुरू करते हो, तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगा मैं कहाँ से पढ़ूँ? मैं बुक से पढ़ूँ, कि मैं यूट्यूब वीडियो से पढ़ूँ, कि मैं सब्सक्रिप्शन लूँ, कि मैं ये करूँ, कि मैं कौन-सी बुक से पढ़ूँ? मैं गाइडन पढ़ूँ, कि मैं सैम्युलिंगम पढ़ूँ, कि मैं ये पढ़ूँ, कि मैं वो पढ़ूँ? नहीं समझ आएगा। मुझे अभी तक भी समझ नहीं आया है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, मैनेज करना है, कॉलेज भी जाना है, 4 बजे तुम कॉलेज से आ रहे हो, थोड़ा बहुत रेस्ट तो करोगे, इंसान हो। 5 बजे से अगर 5:30 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, फिर भी तुम्हारे पास 3-4 घंटा मिलता है मैक्सिमम। क्योंकि तुम्हें खाना भी खाना है, उसमें तुम्हें अपना नहाना-धोना, बर्तन, कपड़े सब कुछ करना ही पड़ता है, हॉस्टल में रह रहे हो तो। नहीं होता है इतना टाइम, और वो बुक्स कभी खत्म नहीं होएँगी। और तुम कितना ही कर लो, सिलेबस अच्छे से खत्म नहीं होता है। इतना बर्नआउट हो जाएगा, इतना बर्नआउट हो जाएगा, हमेशा तुम लैग करते रहोगे, यूड बी लाइक ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी कैसे होगा? क्लास आगे ही बढ़ गई हैं, लेक्चर्स आगे ही बढ़ गए हैं। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, 2 महीने हो गए थे, और मैं छू भी नहीं पाई थी, बायोकेमिस्ट्री तो मैं छू भी नहीं पाई थी, मुझे कुछ नहीं आता था बायोकेमिस्ट्री में। फिर जब छुट्टियाँ पड़ी तब जाकर के मैंने थोड़ी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी अपनी। तो हाँ, मतलब होगा ऐसा कि कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी ही। और फिर पास होने के भी लेजिट लाले पड़ते हैं। अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सोचते होंगे कि यार हमने तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमने इतना सारा सिलेबस कर लिया। पास होना इज़ नॉट बिग ऑफ अ डील, बट जेन्युइनली, दिल से स्पीकिंग, पास होना इज़ बिग ऑफ अ डील। 50% मार्क्स स्कोर करना इज़ बिग ऑफ अ डील, नहीं हो पाता है। एटलीस्ट इन टर्मिनल्स और इन सब में तो नहीं ही हो पाता है। सो या, बर्नआउट इज़ वेरी रियल, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, वो चीज़ नहीं होगी कंप्लीट। और हाँ, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बट यू विल हैव टू स्टडी लाइक एन इडियट ड्यूरिंग एग्जाम्स। जब प्रॉफ आएँगे ना, तो तुम्हें प्री प्रॉफ, प्रॉफ में तुम्हें बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। और फिर वही है ना कि तुम नहीं पढ़ते हो, और पास होना इज़ नॉट द ओनली थिंग यू एम फॉर। there are people who genuinely want to have like a good knowledge for being a good doctor, तो उस चीज़ के लिए भी there is a lot to cover। तो रोज पढ़ाई करके भी कंप्लीट नहीं ही हो पाता है। वन मोर थिंग इज विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो, इट्स वेरी जो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन होता है, एक सेंस ऑफ लाइक कंपटीशन होता है ना, दैट इज वेरी प्रेवलेंट अमंग स्टूडेंट्स ओवर हियर इन मेडिकल कॉलेज। क्योंकि हाँ, तुम लोग नीट दे करके आए हो, तो होता है ना कि नीट इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन। तो यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स इन ऑर्डर टू गेट इन टू मेडिकल कॉलेज, राइट? तो समहाउ वो जो मेंटालिटी होती है ना, दैट स्टिल्स देयर इन योर हेड, एंड देन यू आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन। तो तुम्हें ना, लाइक most of the people here would always be in a constant comparison with other people of the class, all those people or students who are preparing for NEET right now, और वो आगे जाकर के मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो आई वुड वांट यू पीपल टू आल्सो नो कि वो चीज़ वहाँ नहीं करनी होती है। मेडिकल कॉलेज में कॉम्पिटिटिव नेचर होना इज लाइक अपनी जिंदगी की खुद ही वाट लगा देना।
Okay, bye.